afternoon. Welcome to Archana classes for Judicial Excellence. Today, we are going to discuss the political science and constitution of India, and specifically we will discuss the political system of India. Political science. In our last lecture, we have clarified what is political science, and in this study, what we used to study. Today, we will see Constitution of India and its salient features. Basically, today we will see Indian polity and constitutional law. This subject is important for the point of view of IAS, GS, CSET, judiciary, particularly the aspirants who are going to appear in UP judiciary, and also for the purpose of law studies. In our previous lecture, I discussed that political science is a study of political institutions, political systems, relations between state and its citizens, relations amongst society, state, public, and international field, that is other state. Of the world. We also discussed that in this study, we discuss the political behavior and activities of political parties, pressure groups, political process like elections and all. If we want to know what is Indian polity, what is the Indian political system, and Indian state and government, it was made clear that generally and in ordinary sense, we can say political science is a study of state and government. किसी कंट्री के बारे में, उस कंट्री की गवर्नमेंट के बारे में, वो कंट्री कैसे चलती है, उस कंट्री में शासन क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम किस ढंग का है, उसका उसकी पब्लिक के साथ, सिटीजन्स के साथ, पॉपुलेशन के साथ रिलेशन कैसा है, और उस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या सिस्टम बनाया गया. For Indian political system and to know what is the state and government in India, we have to go back to Constitution of India. Constitution is the grand norm from where we come to know what is the political system, what are the legislations, what are the policies of government. And I told you that whatever is the policy of the government, that come through the in the form of legislations from the legislative body. I also informed in brief that in India we have separation of powers, Montesquieu theory. The power is not lying in one center, it is lying in three centers, divided in three centers. The legislative powers,
are with the legislative body, executive powers are with the executive body, judicial powers are with judiciary, judicial system. So this system has been created in the Constitution of India. If you want to know what Constitution of India says, then we have to go to the preamble of the Constitution. Preamble is the spirit of. This preamble tells you what India is, what India is to be, what is the vision and philosophy of India, what is the object and the policies of India, what kind of government we are going to visualize and envisaged at the time of framing of the Constitution of India. If you want to know the salient features of Constitution, we have to go through the preamble of the Constitution. You must have heard that we have the fundamental rights, we have the fundamental duties, we have the directive principles. All these things are provided in Constitution of India. Okay. With this introduction, I would move further, asking one what is the importance of this day? And date. What is the importance of 26th of January for our country, and what is the importance of this date, 26th of January 1950? Please tell me. It's Republic Day. It is Republic Day. Good. In India, in our country, the Constitution has applied in this date. Enforced with effect from 26th of January. This date is important for this. 26th January is important because this day is known as Republic Day. This date is important because on this day, Constitution of India was enforced. उस दिन हमारा नया संविधान Applied. लागू हुआ था. उस दिन से हमारी कंट्री पर वो संविधान लागू हुआ था. So first of all, we have come to know that 26th of January is important date for country as it is the Republic Day. This date itself is important because on that day Constitution of India was enforced, right? Adopted, enforced. 26th of prepared and adopted on 26th of November 1949. अब मुझे कोई ये बता सकता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की इंतजार पूरी इंडिया फ्रीडम के बाद से 1947 से वेट कर रही थी, जिसको 3 साल लगे तैयार करने में, 2 साल से ज़्यादा लगे. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, 2 साल लगे बनाने में. लगभग 500 से ज़्यादा ऊपर लोगों ने बैठ के बनाया. पूरे वर्ल्ड के सेलिएंट फीचर्स जो थे सिस्टम के, पॉलिटी के, उन सबको पढ़ा गया, रिसर्च की गई और उसके बाद बेस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया गया. और जो तैयार हो गया तो 26 नवंबर को, व्हाट वाज द नीड टू अडॉप्ट इट ऑन 26th ऑफ जनवरी? व्हाई वी वेटेड फॉर दिस 2 months? About why we waited for 26th of January 1930 was the date which our freedom fighters decided to declare as Swaraj Day, Independence Day.
1930 के अंदर, यानी 20 साल पहले सभी लोगों ने मिलके अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि हम आज से अपने आप को आज़ाद मानते हैं। 26 जनवरी 1930 वॉज द इंडिपेंडेंस डे, एंड ऑन एवरी डेट, every year onwards, on this date a procession used to be taken all over the country to say that we are independent, we don't accept your sovereignty. and इस procession में बहुत लोग मारे जाते थे। इस दिन को याद करने के लिए, इस दिन को यादगार बनाने के लिए इस 2 महीने का इंतजार किया गया। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, बट इट वॉज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कंट्री के लिए, इसीलिए 26 जनवरी को प्रोसेशन निकलता है, 26 जनवरी की परेड निकलती है। एंड कंट्री ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इट्स कल्चर, इट्स फोर्स, इट्स न्यू डेवलपमेंट्स, इट्स प्रोग्रेस, इट्स पॉलिसीज एंड इट्स पॉपुलेशन। हमारे स्कूल के बच्चे अपने तरीके से एक्सप्रेस करते हैं हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ क्या है। झांकियों के रूप में ये निकाला जाता है कि हमारा कल्चर क्या है, हमने क्या नई प्रोग्रेस करी, हमने कितनी नई ऊंचाइयां करी हैं, हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। 1950 से लेकर आज तक हमने क्या क्या कहाँ तक पहुँच गई ये कंट्री। और इसको हम उस वक्त इंडिपेंडेंस डे मनाते थे, लेकिन क्योंकि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे हो चुका था 1947 में, इस डे को रिपब्लिक डे मनाया गया। एंड कैन एनीबडी टेल मी रिपब्लिक का क्या मतलब है? वो कंट्री होती है जिस पर उसी कंट्री की सॉवरेनिटी होती है। सॉवरेनिटी, डिसीजन मेकिंग पावर, अल्टीमेट अथॉरिटी। हम लोग सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। हमारी कंट्री में सब कुछ था, लेकिन हम लोगों की कंट्री में फाइनल अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग कौन थी? क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, सिटिंग इन यूके until the independence. And even before adopting the Constitution of India, we were to have the supremacy sovereignty from there. तो जब किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो जाता है, वो सॉवरेनिटी अडॉप्ट कर लेती है, तो उसको हम कहते हैं रिपब्लिक। तो मैंने स्टेट के पास बताया था पॉपुलेशन, गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट थी वो यहाँ जरूर थी, इंटरिम गवर्नमेंट, बट द फाइनल गवर्नमेंट अथॉरिटी वाज सिटिंग एट। अब मैं इसके बाद मैंने ये इंट्रोडक्शन इसलिए दी बिकॉज दीज आर दी इम्पॉर्टेंट डेट्स विच वी शुड नो एज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज सेलिएंट फीचर्स। और कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा अगर खाका जानना है तो वी हैव टू गो थ्रू दी प्रीएम्बल। हम सारे अपने भारत के लोग सारे के सारे मिलके आज शपथ लेते हैं क्या? एंड टू सिक्योर टू ऑल ऑफ इट्स सिटीजन, शपथ लेते हैं और अपने सारे के सारे सिटीजन्स के लिए हमने क्या क्या सिक्योर करना है, क्या क्या। टू इंस्टीट्यूट इंडिया, कैसी इंडिया बनाना है, हमने किस बात को बनाने की शपथ ली, इंडिया को कैसा बनाने की, बताइए। सोवरेन, एक सेकेंड, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ओके, एक सेकेंड, इंडिया को हमें ऐसा बनाना है, यानी हमारी इंडियन पॉलिटी का स्ट्रक्चर क्या है? सोवरन, हम अपनी आज़ादी अपनी वो किसी पर भी डाइवर्स नहीं करेंगे, हमारी पावर्स हमारे पास है, हर एक चीज़ का डिसीजन हम खुद लेंगे, हमारी कंट्री में ले जाएगा। सोशलिस्ट,
मैंने बताया था उस दिन, सोशलिस्ट कंट्री मीन्स वेलफेयर स्टेट, जो सोसाइटी को सामने रखती है, इंडिविजुअल को थोड़ा पीछे रखती है, और सोसाइटी ऊपर है, इंडिविजुअल बाद में है। अगर इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में क्लैश होगा किसी इंटरेस्ट का, तो सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट। सेकुलर, this country will respect all the religions because this was a country of diversity. It has so many religions, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बहुत सारे religions. तो secular, respecting all religions. Democratic, मैंने डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट को भी बताया था। ऑटोक्रेटिक, एक का राज, डेमोक्रेटिक, बहुतों का राज। फॉर द पीपल, 2 ग्लास, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों का राज, जनता का राज, राइट। डेमोक्रेटिक, रूल ऑफ पीपल, ओके। सोशलिस्टिक, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल में से सोसाइटी इज एट द अपर एज, ओके। सोवरेन, sovereignty lies in इंडिया itself। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इन इंडिया itself कैसे, पहले कहाँ लाई कर रही थी, किसी और कंट्री में, ओके। हम लोगों के यहाँ जो डिसीजन भी होते थे कोर्ट के, वो डिसीजन भी उसकी फाइनल अपील प्रीवी काउंसिल में, यूके में। बैरिस्ट्री यानी कि एडवोकेसी भी वहीं से जो डिग्री आती थी उसी का होता था लाइसेंस, ओके। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बिकम बैरिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, ओके। अब आप LLB की डिग्री लेते सारे के सारे बैरिस्टर हो जाओगे, लॉयर हो जाओगे, ओके। रिपब्लिक which has its own constitution and authority, political authority, ओके। आगे चलें। इंडिया को हमें ऐसे बनाना है, हमने क्या ओथ ली, क्या शपथ ली इस प्रियम्बल में, इंडिया को हमें ये बनाना है। अब सिटीजन को कैसे बनाना है, सिटीजन के लिए क्या क्या लाना है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। इसके लोगों के लिए क्या क्या चाहिए हमें, जस्टिस भी हमें चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस हमें 3 तरह का चाहिए। सोशल, सोसाइटी में हर एक आदमी इक्वल होगा, हर एक को जस्टिस मिलेगा, गरीब हो या अमीर हो। इसीलिए जुडिशरी में गरीब लोगों के लिए लीगल एड की संस्था भी बनाई गई है, जिन्हें लीगल एड एंड अथॉरिटी फ्री लीगल एड और एडवोकेट प्रोवाइड करती है, सो दैट हर एक को जस्टिस का दरवाजा खटखटाने में दिक्कत ना हो। जस्टिस सोशल, पूरी सोसाइटी में सभी के लिए जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस भी, पैसे के मामले में भी हैव और हैव नॉट्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, इस तरह की पॉलिसी बनाएंगे, यानी कि जस्टिस भी इकोनॉमिक, ओके। पॉलिटिकल, किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए, किसी को पॉलिटिक्स में आने के लिए, किसी को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए पूरी इक्वल राइट्स अवेलेबल हैं। एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। और क्या चाहिए इसके सिटीजन के लिए, जस्टिस चाहिए इस तरह का, लिबर्टी चाहिए किस किस चीज़ की, थॉट्स, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से प्रोवाइड कराई,
फंडामेंटल राइट्स। चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स डाला गया, जिसमें ये सब लिबर्टी के कॉन्सेप्ट डाले गए। जस्टिस ये सब किया गया, इसके लिए जुडिशियल सिस्टम बना, जिसमें कि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से एवरीबडी वाज इक्वल फॉर बिफोर द रूल ऑफ बिफोर द लॉ। इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम बनाया गया। लेजिस्लेशन ऐसे बनाए गए जिनसे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सभी तरह के जस्टिस मिल सके। और क्या देना है इनके सिटीजन को, इंडिया के सिटीजन को? इक्वालिटी। इक्वालिटी। अब इक्वालिटी किस तरह की चाहिए? स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट। अब क्या हमें प्रमोट करना है? अमंग देम ऑल क्या करना है? प्रमोट क्या करना है? फ्रेटर्निटी, dignity of the individual, dignity of individual and unity। इसके साथ हमें चाहिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब आप देखिए, इस प्रीएम्बल के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू विजुलाइज किया है कि हम इंडिया को ऐसा बनाएंगे। ये सैलिएंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके सिटीजन्स के लिए सिक्योर करेंगे जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। किस तरह की जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप। एंड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इन सब में हम क्या लाएंगे? इन सब के लिए हम क्या प्रमोट करेंगे? ये तो सिक्योर करेंगे और ये प्रमोट करेंगे। क्या करेंगे? फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी। ओके, ये हुआ सिटीजन्स के लिए। कंट्री का स्वरूप कैसा होगा? ऐसा। एसआर, एसडीआर। सिटीजन्स को मिलेगा, प्रोमोट किया जाएगा फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी, भाईचारा और रिस्पेक्ट सबके लिए। और कंट्री में कंट्री को रखा जाएगा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। एक रखेंगे, टुकड़े नहीं करेंगे, इंटीग्रिटी रहेगी। ओके, अभी मैं इन शब्दों को जहाँ जहाँ हमने सिस्टम जो जो क्रिएट किया उससे रिलेट करूँगा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सारे के सारे प्रीएम्बल में कहते हैं हमने रिजॉल्व किया है, वी पीपल ऑफ इंडिया, हम सब ने मिलकर रिजॉल्व किया है कि हम कंट्री को ऐसा बनाएंगे, सिटीजन्स को ऐसा बनाएंगे, ये चीज़ें प्रमोट करेंगे, इंडिया को ऐसे रखेंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने बताया 500 से ज़्यादा लोग बैठे और उन्होंने बैठकर ये बनाया। ऑन दिस 26th day of 1949, 26th day of November 1949, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि हम आज के दिन ये करते हैं। और आगे क्या कहते हैं? डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट। क्या करते हैं? देखो बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। अडॉप्ट, इनेक्ट एंड डू ourselves to this constitution। हम इसे अडॉप्ट भी कर रहे हैं, हम इसे इनेक्ट भी कर रहे हैं। इनेक्ट मतलब लिख दिया, और हम अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को। दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज ग्रैंड नॉर्म फॉर ऑल लॉज। एवरी लॉ स्टूडेंट शुड नो दिस। एवरी लॉ पर्सन जिसने जो लॉ फील्ड से रिलेटेड है, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो जज है या जज बनने चाह रहा है, दे ऑल शुड नो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सरेंडर भी कर दिया, टू डू आवरसेल्व्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन।
आप ये देखिए, हमने अडॉप्ट कर लिया था, इनेक्ट कर लिया था, और 26 जनवरी को क्या किया, इन्फोर्स किया है उसे, इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी। after 2 months. So these are the important aspects of Constitution of India and Indian polity. अब इस पूरे प्रियम्बल को अगर हम याद कर लें तो समझो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद है। आज हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे, उसके कुछ फीचर्स, क्योंकि आपने देखा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, सोशलिस्ट भी है। तो आज हम सिर्फ बताएंगे आपको कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। मैंने आपको बताया था डेमोक्रेसी, ठीक है, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी जैसे मैंने बताया, एक आदमी का राज या कुछ लोगों का या परिवार का राज, राजतंत्र टाइप। डेमोक्रेसी इज पूरी पब्लिक का राज। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये आपने अभी देख लिया है। वी अडॉप्टेड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ए रूल बाय पीपल, ऑफ पीपल, फॉर पीपल, ठीक। मैंने उस दिन लेक्चर में बताया था आपको, जब हमने पॉलिटिकल साइंस को इंट्रोड्यूस किया था, इंडियन पॉलिटी को डिस्कस किया था, पीपल कैसे राज करेंगे। इसके दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि मुझे यहाँ पर लीडर चुनना है इस क्लास का, तो मैं सबको पर्ची पकड़ा दूंगी वोट के लिए, जो अपने आप को प्रपोज करेंगे कि लीडर कौन कौन बनना चाहते हैं, उनका नाम बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। सब अपनी पर्ची पर अपने पसंद के उम्मीदवार का नाम लिखेंगे, यहाँ एक डब्बे में डाल देंगे। मैं वो डब्बे का पर्चियाँ निकालूंगी और देखूंगी किसकी मेजोरिटी है, किसको ज़्यादा वोट मिले वो लीडर। सिंपल। तो मेजोरिटी विंस। वेरी सिंपल रूल, बहुत सुंदर है। डेमोक्रेसी कोई बड़ी चीज नहीं है, समझने के लिए बहुत आसान है। इट इज वेरी सिंपल। लीडर चुनना है, जितने लोग खड़े हैं सब खड़े हो जाएंगे, जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा। एवरी डे यू कम टू नो दिस कंट्री में, ठीक है। ये हुआ जो मैंने सिस्टम बताया कि हम सारे लोगों को बिठा दें, सबके वोट लगा दें और सबसे ज़्यादा वाला लीडर चुन दें। पर जहाँ करोड़ की जनसंख्या हो वहाँ इस टाइप की डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। तो हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हैं अगर पॉपुलेशन बिग है तो। हम क्या करेंगे कि हम सब लोग बैठकर तो डिसीजन नहीं ले सकते ना। अब हमने लीडर बनाया तो सबने बैठकर वोट कर दिए। अब मान लो हमें कोई पॉलिसी बनानी है तो हम सबको बिठा दें, फिर कहें कि सबके पास पर्ची भेज रहे हैं, सब पर्ची लगाओ, फिर पर्ची हम कलेक्ट करेंगे करोड़ों में। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो क्या किया है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। सभी अपने अपने एरिया से एक एक आदमी को चुन के भेजे, एरिया डिवाइड कर दिया। मान लीजिए कि पार्लियामेंट में हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजने हैं, पूरे के पूरे इतने करोड़ में से हमने पार्लियामेंट में 2 सभा बनाई है, लोकसभा बनाई जो कि इलेक्टेड बॉडी है, और ये भी इलेक्टेड है लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। इसमें 545 लोगों को चुनना है। पूरी कंट्री में हर एक स्टेट की सीटें डिवाइड कर दी, हर एक जगह से इलेक्शन होंगे, हर एक एरिया एक एक आदमी को भेज देगा, 545 लोगों को भेजेगा, और ये रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में आपके डिसीजन लेंगे। तो इसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। ओके, इंडिया हैज अडॉप्टेड दिस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक सिस्टम तो अडॉप्ट किया है, लेकिन इनडायरेक्ट, क्यों? हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, सिचुएशन ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, दूर दूर है। ये रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना, ये भी दो तरह की होती है, और एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर से हमने सारे चुन लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन उस डेमोक्रेसी को भी दो तरह की डेमोक्रेसी कर रखा है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। राइट? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट इज सुप्रीम, और जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट से इलेक्टेड मेंबर इलेक्ट करते हैं, वो बनता है। पब्लिक नहीं बना रही उसे। प्रेसिडेंट इलेक्शन पब्लिक में नहीं होता, पार्लियामेंट पब्लिक में हुआ। पार्लियामेंट बनने के बाद दोनों के दोनों हाउस से चुन लिया, और चुनने के बाद प्रेसिडेंट बना दिया। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या है कि पार्लियामेंट भी पब्लिक चुनती है और प्रेसिडेंट को भी पब्लिक। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड पर्सन, सो जो इलेक्टेड है ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल डायरेक्टली। पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, उनको जवाब देने के लिए वो डायरेक्ट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। सो वी हैव अडॉप्टेड indirect democracy, यानी representative character democracy, and that is also parliamentary democracy. This is the structure of Indian democracy. Salient features of democracy आएगा constitution, उसमें आपको democracy describe करना है, and so this is the democratic system which Indian political। अब एक सिस्टम और हम डिस्कस करेंगे आज के लिए, वो है नेचर क्या है हमारी डेमोक्रेसी का, पावर का डिवीजन कैसा है। फेडरल है या यूनिटरी है। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उससे पहले वर्ल्ड की बहुत सारी डेमोक्रेसीज ऑलरेडी इन्वोक थी, और हमारे बहुत सारे लोगों ने, पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन विजनरीज ने, 500 के करीब लोगों ने बैठकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सैलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड लिए। तो उन्होंने इंडियन स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया जिसमें कुछ फीचर्स फेडरल के आए, कुछ फीचर्स यूनिटरी के। डेमोक्रेटिक सिस्टम में उन्होंने अडॉप्ट किया रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी विद पार्लियामेंट्री फीचर्स। ओके, अमेरिका में डेमोक्रेसी है लेकिन, और रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की है, लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, वहाँ प्रेसिडेंट डायरेक्ट चुना जाता है। और इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी इंडिया के मैप को बनाने की। ओके, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक है। इसमें ये एक स्टेट है, यहाँ एक स्टेट है, यहाँ एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, यहाँ स्टेट है, सो मैनी स्टेट्स। यहाँ स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, इस तरह से बहुत सारे स्टेट हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेडरल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें जो पावर्स है ना,
हर एक पार्ट को फुल पावर दे दी जाती है, फुल अथॉरिटी। स्टेट्स को फुल ऑटोनॉमी दे दी जाती है। ऑटोनॉमी मतलब पावर। आपको जो कुछ करना है अपने एरिया में करो, तुम्हारी अपनी सरकार है, तुम्हारा अपना सब कुछ है, तुम्हारे जितने रिसोर्सेज हैं, तुम्हारी जितनी इनकम है, जो भी कुछ है, यू आर एम्पावर टू डू एवरीथिंग। और सेंटर क्या करता है? सेंटर क्या करता है? सेंटर सिर्फ 3 चीजें देखता है: बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एनवायरनमेंट। इस तरह की चीजें जो पूरे की पूरी कंट्री के लिए रिक्वायर्ड है, जो एक स्टेट नहीं संभाल सकता। बॉर्डर संभालना, इंटरनेशनल रिलेशंस बनाना, एनवायरनमेंट एंड ऐसी जरूरी चीजें। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, जहां पावर डिवीजन होती है अलग अलग सेगमेंट्स में। पूरे के पूरे कंट्री को उसकी ज़रूरतों, उसकी कंट्री कल्चर, उसकी प्लेसमेंट, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ जिसकी प्लेसिंग है वहीं पे उनकी गवर्नमेंट बन जाती है, और वो गवर्नमेंट पूरी तरह से रन करती है फुल ऑटोनॉमी के साथ, और सेंटर के पास ज़्यादा काम नहीं होता। यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? सेंटर और स्टेट तो होते हैं, स्टेट्स होते हैं, लेकिन सेंटर हर चीज पर कंट्रोल रखता है। स्टेट सेंटर कहता है कि हमें हर चीज हमसे पूछ के करोगे, हम डिसाइड करेंगे तुम्हारे लिए भी। अब जब इंडिया आज़ाद हुई तो बिग क्वेश्चन मार्क, फेडरल और यूनिटी, कौन सा करना है भाई? इंडिया वॉज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। इतनी डाइवर्सिटी थी कि अगर दिल्ली में नॉर्दर्न इंडिया के अंदर हिंदी बोली जाती है, साउदर्न इंडिया के अंदर तमिल बोली जाती है, तो दोनों में से किसी के शब्द नहीं मिलते। अगर दोनों को खड़ा कर दो तो वो तमिल बोलेंगे, आप हिंदी बोलेंगे, दोनों में से किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। नॉर्थ इंडियन और गोवा कोंकणी बोली जाती है, वहाँ एसमीज और ये सब बोली जाती है, तो उनको खड़ा कर दो, दे कैन नॉट कम्युनिकेट। इवन हिंदी स्टेट्स की जो लैंग्वेज है वो भी हिंदी का एक बेल्ट से दूसरे बेल्ट, पश्चिमी बेल्ट जो है, जो वेस्ट है, वो ईस्ट के साथ नहीं कम्युनिकेट कर सकता। पंजाबी के साथ अगर हम उड़िया या बंगाल या बिहार खड़ा कर दें, उनकी लोकल लैंग्वेज शुरू करते हैं, तो दे कैन नॉट टॉक। तो ऑल लैंग्वेजेज आर इन हिंदी। सो दिस वाज एन इंडिया ऑफ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। कल्चर डिफरेंट, खाना पीना डिफरेंट, कपड़े अलग, भाषा अलग। ऐसी कंट्री के लिए द बेस्ट सिस्टम वॉज टू बी अडॉप्टेड वॉज फेडरल। सब सारे स्टेट्स को सारी चीज़ों को डिवाइड कर लो, वो अपने अपनी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। कहीं पे चावल खाया जाता है, कहीं पे रोटी खाई जाती है, कहीं पे भिंडी खाई जाती है, कहीं पे टिंडा खाई जाता है ना। कोई मीट ईटर्स हैं, कोई राइस ईटर्स हैं, कोई वेज है, कोई नॉन वेज है। जो कोस्टल स्टेट्स हैं, दे आर एब्सोल्युटली बेसिंग ऑन द फिश food. So many cultural differences, so many distance differences, language differences, diversity. So this was discussed that it would be the best culture, best इंडिया आज़ाद तो हुई लेकिन 2 हिस्सों में इंडिया बनी, पाकिस्तान बन गया। बॉर्डर्स वर नॉट सिक्योर्ड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एंड वी वांटेड द यूनिटरी कंट्रोल। दूसरे कंट्री से, दूसरी गुलामी से आज़ाद हुआ था, तो एक ऐसा कंट्रोल चाहिए था जिसमें कंप्लीट सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए पूरी की पूरी कंट्री की एक जैसी। अब मान लीजिए एक हिस्से में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, एक हिस्से में कोई भी रिसोर्स नहीं है, एक हिस्से में ड्रॉट ज़्यादा होते हैं, एक हिस्से में फसल ज़्यादा होती है, एक हिस्से में बरसात होती है, एक हिस्से में पहाड़ी पहाड़ हैं, एक हिस्से में मैदानी मैदान है जहाँ खाना बनता है। तो एक चीज़ यहाँ पैदा होती है, एक चीज़ वहाँ पैदा होती है, इस तरह की चीज़ें थी। तो एक ऐसा कंट्रोल चाहिए था कंट्री को कि एक सेंटर ऐसा कंट्रोल करना चाहिए जो कंट्रोल कर सके। उसके बाद हमने अडॉप्ट क्या किया था? सोशलिस्टिक सोशलिस्टिक
सेकुलर डेमोक्रेसी, रिलीजन भी अलग अलग है, उनको सेकुलर भी करना है, सबको रिस्पेक्ट देना है। ये सब चीज़ें देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि यूनिटरी भी अडॉप्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्रोग्रेस करनी है, गुलाम देश से हम आज़ाद देश हुए। तो क्या किया गया, इस कंट्री में ऐसा सिस्टम बनाया गया कि फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इन्होंने ये 3 चीज़ें लेकर छुट्टी कर दी सेंटर में। इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल बनाया, उस शेड्यूल में 3 लिस्ट बनाई और ये डिवाइड कर दिया कौन से सब्जेक्ट सेंटर देखेगा, कौन से सब्जेक्ट स्टेट देखेगा और कौन से दोनों देखेगा। पॉलिसी लेजिस्लेशन किन सब्जेक्ट्स पर सेंटर बनाएगा, किन सब्जेक्ट पर ये करेगा। जैसे रेलवे बनानी है तो उसका यूनिटरी के साथ कंट्रोल है, इंडियन रेलवेज है। आईएएस ऑफिसर्स भेजने तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट के अंदर के लोगों को लेगा, लेकिन अगर पूरी इंडिया में डीएम बनाने हैं तो वो होगा, सीएम वुड बी देयर बट गवर्नर वुड बी सेंट्रल। तो पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, एवरी सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये सारा का सारा डेवलप किया गया इस हिसाब से। अब आप देखिए लास्ट में शेड्यूल है इस कॉन्स्टिट्यूशन के, इसलिए मैंने कहा पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, उसके बिना हम किसी भी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते। 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लास्ट में लगा हुआ है। इसमें यूनियन लिस्ट, ओके, यूनियन लिस्ट जिसमें 97 मैटर्स हैं। स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, इसमें कितने मैटर्स हैं, 66 मैटर्स हैं। और लिस्ट 3 यूनियन एंड स्टेट बोथ, कंकरेंट लिस्ट, इसे कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। इस लिस्ट में 47 मैटर है। तो ये देखिए इस लिस्ट के अंदर जो सेंट्रल लिस्ट है, सबसे पहला मैटर है डिफेंस ऑफ इंडिया, मैंने बोला था डिफेंस सिक्योरिटी। दूसरा मैटर है नेवल मिलिट्री एयर फोर्सेज, मिलिट्री। डिलिमिटेशन ऑफ कैंटोनमेंट एरिया, आर्म्स, फायर आर्म्स, एम्यूनेशंस, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। तो इस तरह से सो एंड सो ऑन। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ओके देयर वुड बी स्टेट्स, देयर वुड बी अ सेंटर, स्टेट की भी गवर्नमेंट होगी, सेंटर में भी गवर्नमेंट होगी, सेंटर में गवर्नमेंट चुनी जाएगी, सेंटर में भी लेजिस्लेशन बनेगी, स्टेट में भी लेजिस्लेशन बनेगी, ताकि उनकी डाइवर्सिटी के हिसाब से वो उसकी नीड को पूरा कर सके। लेकिन 97 मैटर्स पर कंट्रोल सेंटर का होगा, स्टेट को दिए गए 66 मैटर्स, और दोनों के मैटर 47 है, यानी दोनों बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। तो इस तरह से हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री ने जो सिस्टम अडॉप्ट किया, फेडरल एज वेल एज यूनिटरी। तो कई बार क्वेश्चन आता है वेदर इंडिया इज फेडरल सिस्टम और यूनिटरी, और इट इज नॉट बोथ, इट इज नॉट एनीथिंग, नीदर। ठीक है, तो योर आंसर वुड बी though we adopted the federal structure but with unitary features. So we adopted federal structure, हमारा स्ट्रक्चर तो फेडरल है बट विद यूनिटरी फीचर्स, बिकॉज इंडिया की सिचुएशन ऐसी थी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इतना ही। एनी प्रॉब्लम्स, किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़, ये यूनिटरी फीचर में और फेडरल पे भी आता है। कुछ हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज हैं, कुछ स्टेट्स हैं, कुछ टेरिटरीज ऐसी हैं जिनको स्टेट नहीं बनाया गया, जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि दिल्ली, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन अब इसे हाफ स्टेट
इसके अंदर गवर्नमेंट भी है और हाफ ये यूनिटरी है. LG is having certain powers, it has a union feature, and state is also there, state government is also there, CM is also there, so it is a union territory also. तो इसे कहते हैं क्या? तो ये टेरिटरी भी है और कैपिटल स्टेट भी है. इट इज नॉट ए फुल स्टेट. LG हैज सर्टेन पावर्स. यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, दैट इज गवर्नर. यहाँ CM भी है. ठीक है. तो कुछ टेरिटरी जैसे बॉर्डर स्टेट्स हैं, जहाँ जहाँ लगा कि हमारा सेंटर का कंट्रोल होना चाहिए, वहाँ पर उन्हें टेरिटरी बना दी. और जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि स्टेट कैन रन, एवरीथिंग इज गोइंग वेल. इमरजेंसी पावर्स आर ऑल्सो यूनिटरी फीचर. जब इमरजेंसी लगती है तो पूरी की पूरी कंट्री को सेंटर के अंडर में डाल देते हैं, नेशनल इमरजेंसी. तो दैट इज ऑल्सो कन्वर्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर टू यूनिटरी स्ट्रक्चर. तो ऐसे फीचर्स डाल रखे हैं. सो वी आर फेडरल सिस्टम बट विथ यूनिटरी फीचर्स. ये फीचर्स हैं, यूनिटरी फीचर्स हैं. मतलब ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेज हैं जब सेंटर पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है, एवरीथिंग इज कंट्रोल. ठीक है. तो बेटा ये एनी प्रॉब्लम. सो विद दिस may I summarize? We had discussed political science as a study of state and government. We had discussed that it is a study of political institutions, political parties and pressure groups, relations between society and citizens and people, and with international states, political system, and so on. Okay. हमने देखा कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इंडिया को किस तरह की इंडियन पॉलिटी दी है. इंडियन पॉलिटी में मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने डिसाइड कर रखा है कि हमें कैसा स्ट्रक्चर बनाना है इंडिया का, और उसमें वो इंडिया को 5 फीचर्स डिस्क्राइब किया है, जिसमें कि सोवरन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यानी कि ये सारे के सारे फीचर्स होंगे. खत्म. फिर हमने बताया आपको कि हमने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो अडॉप्ट किया है वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का किया है, और वो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है. दूसरा हमने जो स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है, जो हमारा स्ट्रक्चर है सोवरेन स्ट्रक्चर, वो फेडरल है लेकिन यूनिटरी फीचर के साथ है. ओके. सो आज के लिए दिस इज ऑल. गुड नाइट.